India's newest political star, the angry young man of Indian politics. हमें मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है, हम जनता के बीच के ही लोग हैं. The man who claims to be the protagonist of a new political culture. The most visible face of the Aam Aadmi Party. A man who aspires to be everything a typical neta is not. इतिहास गवाह है जब पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई है, जुनून जीतता है, पैसा हारता है. A man who believes this Delhi election, his is the political alternative. हम दिल्ली चेंज करेंगे झाड़ू के साथ. इन 10 दिनों में हम सब ने मेहनत कर ली, तो दोस्तों फिर तो फतेह हो जाएगी, फिर तो इस देश की काया पलट जाएगी. भारत माता की. Yes, this is the man who's been called a challenger, an anarchist, an anti-neta, a political novice who's trying to change the political culture. This campaign trail is going to be like no other. No lavish breakfast, no helicopter rides, no barricades, no security. Just an incredible campaign that has shunned all traditional means and is relying on a vocabulary that is fresh and rustic. 8 a.m., a multi-storied apartment complex in Kaushambi, just on the outskirts of the national capital. Home to some government servants and some who claim to be just Aam Aadmi. Arvind Kejriwal is ready for the day. A half-sleeve sweater, neatly combed hair. For the next 60 to 90 minutes, depending on where the campaign schedule for the day is, Arvind in front seat and 2 to 3 supporters in the rear will drive down Delhi's roads in peak hour traffic like any other city goer. No trailing security, no lal batti. Just a blue WagonR car with a fading sticker of the Aam Aadmi Party on its front and a man in a hurry inside. लाल बत्ती कभी नहीं लेंगे जिंदगी में. मुझे नफरत है लाल बत्ती से. एक आम आदमी को इस देश में नफरत है लाल बत्ती से. आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले. बेहोशी की आदत के आँखों से हटाओ जाले. His first campaign stop, a slum colony on the far edge of the capital in Rohini. Arvind stands in an open jeep next to a cage of chickens. Young and old, school children, women and the elderly crowd him. This procession of sorts with young men on bikes and auto rickshaws ahead will wind through streets and alleys, slums and middle-class colonies. Along the way, Arvind is garlanded with marigold flowers. There are brief fiery speeches at scheduled stops. 10 दिनों में हम सब ने मेहनत कर ली, तो दोस्तों फिर तो फतेह हो जाएगी, फिर तो इस देश की काया पलट जाएगी. The broom symbolizes a sweep of India's rotten politics, claims the Aam Aadmi Party. The white Gandhi cap connects them to the father of the nation. अरविंद, आप शुरू से ही बहुत आइडियलिस्टिक रहे हैं. अब मुझे लग रहा है कि क्या पॉलिटिकल स्फीयर में भी आइडियलिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन आइडियलिज्म के साथ साथ जो ज़मीनी हालात हैं, आपको ज़मीनी हालात तो आज हमारे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज पार्टी कोई है ही नहीं दिल्ली में. बताओ क्या है कांग्रेस के पास? भ्रष्टाचार के अलावा क्या है? पैसा है उनके पास, बहुत 2 नंबर का पैसा कमा रखा है. बीजेपी के पास क्या ऑर्गेनाइजेशन है? बीजेपी के पास क्या? दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार है. यहाँ पे ईमानदारी है, यहाँ पे जुनून है लोगों का. और इतिहास गवाह है जब पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई है, जुनून जीतता है, पैसा हारता है. आओ मिलके साथ में आज के. The campaign is crafted in such a way that there is always the scope to engage both with the individual and the collective. Not just road shows like this one, but a whole host of small meetings at street corners and constituency-wise manifesto meetings. Now compare that with the big mainstream political parties, their huge hoardings, their 12 feet high barricades and stages. So while AAP believes this drive will result in a significantly higher conversion of crowds to votes, there is little doubt that the campaign is a highly personalized one and hinges on one man and one man alone. ये हमारा चुनाव थोड़ी है,
ये तो जनता का ही चुनाव है। हमें मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है, हम जनता के बीच के ही लोग हैं। Beneath the strong undercurrent of public support is a very weak lineup of candidates, relatively unknown. A mithai wala from Janakpuri, a pehelwan from Chhatarpur, and a commando from Delhi Cant. बहुत लोगों से जिन्होंने मैंने बात की है उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी है लेकिन बहुत ही आम है। अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो आम ही नहीं चाहिए। आम नहीं रहेंगे, आप कहोगे खास बन गई है, तो आम आदमी पार्टी तो इतनी आम है कि लीडरशिप इतनी आम है, पता ही नहीं है कौन। अरविंद के अलावा पता ही नहीं है कौन है। योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, संजय सिंह है, कुमार विश्वास है, बहुत सारे लोग हैं। आपको लग रहा है रोहिला के गांव में लोग इन सब लोगों को जानते हैं या फिर आपके कैंडिडेट्स को जानते हैं? नहीं, धीरे धीरे जान जाएंगे भाई। जब ये बाकी लोग आए थे पॉलिटिक्स में, इनको कौन जानता था? अरविंदर सिंह लवली को कौन जानता था? हर्षवर्धन साहब को कौन जानता था? राजकुमार चौहान को कौन जानता था? और ये हम आम हैं, इसी बात से लोग खुश हैं। तो खास बनने में कितनी देर लगती है? 2 टाई कोट पैंट में पहन लूँगा, टाई पहन लूँगा, एक बड़ी मर्सिडीज़ ले आऊँगा, हो गया खास। No surprises then that the young party is banking on the former Indian Revenue Service officer and is hoping his ordinariness will make the connect. ऐसा अगले ने IRS की नौकरी छोड़ी है, कोई करोड़ों रुपया ऐसे नहीं छोड़ देता। लोग राजनीति में किस लिए आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। अगला तो पैसे को ठोकर मार के आ रहा है और किसी न किसी पर तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। बाकी नेताओं की हमने झाड़ू मारा ही नहीं गए, कभी नहीं गए। पहली बार किसी मर्द बच्चे को मिला है देखा हमने और उसके में गए हैं। हम ये करेंगे, जब झाड़ू चलती है सीधी तो सफाई होती है, जब उल्टी चलती है तो पिटाई होती है। Much of Arvind Kejriwal's own sense of euphoria and confidence comes from the ranks of the Aam Aadmi Party. The presence of the educated class, some who are missing work, others who have put their career on hold, some others coming out of retirement, all wanting to play a part in this party's debut election. ये हमारे वॉलंटियर्स कौन है आप बताओ? कनाडा से छोड़ के कोई आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी छोड़ दी, दुकान वाले ने दुकान बंद कर दी। ये कौन है? ये हमारे वॉलंटियर्स नहीं है, ये आम जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। This jamboree rolled out in Najafgarh on a busy weekday. Thanks to the efforts of a network of volunteers. We reached here hours before. BPO workers, school teachers who had taken a day off and housewives after finishing the day's chores had started trickling in. मेरे संडे को छुट्टी होती है, तो आज हमारे आज का प्रोग्राम है, तो मैं आज यहाँ प्रोग्राम में अटेंड कर लिया है। फिर संडे को जो है अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। संडे को नहीं करूँगा, आज छुट्टी ली मैंने। अब जन लोकपाल की मूवमेंट से पहले क्या करती थी? जॉब करती थी मैम, मेट लाइफ। तो वो जॉब अब अभी छोड़ी हुई थी, अभी फुल टाइम यहीं पे पार्टी के लिए वर्क कर रही हूँ कॉलेज। शाम को मैं 5 बजे ड्यूटी जाता हूँ और सुबह 5 बजे आता हूँ, 10-11 बजे उठता हूँ और उसके बाद 3-4 घंटे यहाँ पर देता हूँ हर रोज डेली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वास्तव में बदलाव आए। The conversation, as expected, turned to the dismal state of infrastructure, which they complained never found a place in TV headlines, and the sting on the Aam Aadmi Party, which always did. सबसे पहले तो इतने घोटाले हुए हैं कि आप लोगों के पास कोई और स्कोप बचा ही नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। एक बंदा अच्छा करना चाह रहा है, आप लोग उसे सपोर्ट करने के बजाय आप उसके अगेंस्ट बोलने जा रहे हो। हम किसान हैं, मेरे हस्बैंड मैं हाउसवाइफ हूँ, हम इतनी मेहनत से खेती करते हैं, हम अपनी फसल का अपने आप दाम नहीं लगा सकते। हम अनाज उगाते हैं, हमारे से 5 रुपए किलो आलू लेंगे, हमें 50 रुपए किलो देंगे, 10 गुना भाव हो गए उसके। तो बताओ आप, अब हम क्या करें? घरों से बाहर नहीं निकलेंगे इस महंगाई से लड़ने, तो क्या करें? हम लोग 2.5 घंटे के लिए स्टॉप पे खड़े रह जाते हैं, उसके बाद भी वो जो छोटी वाली ग्रामीण सेवाएं होती है उनमें लटक लटक के भूसे की तरह बस भर भर के हम अपने घर तक पहुंच रहे हैं। उनमें कोई सेफ्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। हम भी उसके साथ ही, इसलिए हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधर जाए, हमारी तो जिंदगी कटेगी जो कट जाएगी। In the crowd, I met Vinay Gulia,
a banker and a supporter of both Arvind Kejriwal and Narendra Modi. अरविंद केजरीवाल जी एक ब्यूरोक्रेट है, वो पॉलिटिशियन रहे हैं, मंजे हुए पॉलिटिशियन है, ये ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये एक सॉफ्ट है नेचर का, ये थोड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो ही नोज द लॉ बेटर, तो वो एक अलग पिच है इनकी। मोदी जी एज अ पॉलिटिशियन की अलग पिच है, वो एक मंझे हुए राजनेता है, तो उनको मैं डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल से थोड़ा ज़्यादा नंबर दूंगा। His critics have questioned some of the ways in which he has positioned himself. For example, a Jan Lokpal bill in a matter of 15 days, a complete audit of electricity firms in a matter of months. Yes, all of this on the campaign trail gets a lot of applause and attention, but many do believe running the state is something else. जितनी करप्शन वगैरह इतनी जल्दी तो हटने वाला नहीं है अभी कुछ भी। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं और देने में दिक्कत? डेफिनेटली मैडम। देखिए अन्ना जी जब तक थे, अन्ना जी ठीक थे, जब तक हम लोग भी सब लोग सारी दुनिया जाती थी। अब जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जो केजरीवाल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर से लोग जो बीजेपी से और कांग्रेस से जो लोग नाराज थे। पूरी दिल्ली बिजली के बिल भरना बंद कर दो। One of his recent political interventions of tearing up electricity bills and cutting off connections has been hardly inspiring. कोई बिजली का बिल नहीं भरेगा और शीला दीक्षित की हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा दें हम लोग। आपके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म होता है कि आपका जो एक मेजर पॉलिसी इंटरवेंशन था बिजली के बिलों को लेकर, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बिजली के कनेक्शन काट देते हैं, बिजली के बिल फाड़ देते हैं। यही तो लोगों को पसंद आता है। पर ये लोगों को पसंद आता है, ये पॉपुलिस्ट है। जब आपको सरकार बनानी होगी तो आप ये सब थोड़ी करेंगे। अगर मैं गलत काम करूं तो मैं लोगों को कहूंगा कि मेरे खिलाफ भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना। Most remember him when he teamed up with Anna Hazare demanding a new anti-corruption law. 16 अगस्त को अन्ना जी को कैद करके तब धोखा दिया। उन्होंने जो संसद का प्रस्ताव था, जो सारी Together they channeled anger about everyday corruption, and though their demand went unheeded, Kejriwal came onto the national stage and relations between the two soured. I don't believe a person who is not cooperating with his own people. In the start of this movement, Anna was there and Kiran Bedi was there, and now nobody is there with him. So I can't believe such a person. It's this tag of an opportunist that Arvind stoutly disagrees with. तो कहीं आपने अन्ना को इस्तेमाल किया है? किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया मैंने? अपने लिए। अगर आप अन्ना को पहले बोलते कि आप राजनीति में आने वाले हैं, क्या मैं तो आना ही नहीं चाहता था पहले भी राजनीति में, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब चैलेंज आ गया कि देश को बचाना है तो फिर हम पीछे नहीं हटे, फिर हमने बनाई पार्टी। अन्ना कह रहे हैं कि ये कीचड़ है, कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इस कीचड़ में अब खुद घुसना पड़ेगा। हमने कब बनाई पार्टी? जब सब कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं हुआ, और जब हम बिल्कुल धरातल के ऊपर थे और कोई हमारे साथ नहीं था, तब हमने पार्टी बनाई कि अब और कोई चारा नहीं बचा इस देश को बचाने का। Coming up ahead on the battle for Delhi. आपका जो कैंडिडेचर है वो शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों होना चाहिए? दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई का सिंबल बन गई है शीला दीक्षित, उसे हराना बहुत जरूरी है। जो करना है तो वो करना ही है, उसको पूरा करना ही है। विल पावर ऐसे स्ट्रॉन्ग थी बचपन से। मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाड़े सच के साथ हूँ खड़ा। As the campaign has rolled into its last lap amid sounds of Kailash Kher's voice and other patriotic songs, Anna's name isn't heard anymore. Corruption remains the dominant topic. Price rise to bad roads all come back to this one issue. गरीब आदमी तो नमक आटे से गूंद के और प्याज फोड़ के रोटी खाता था। अरविंद केजरीवाल कैसे दाम कम कर देगा? दाम भ्रष्टाचार कम होगा, दाम अपने आप कम हो जाएंगे। कोई भी सब्जी 80 रुपए किलो से कम नहीं है। महंगाई आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के आने से कम बिल्कुल कम हो जाएगी। The Aam Aadmi Party realizes that in their first year as a political party, the battle for Delhi is just a big political question: how to fight the clean fight. आप कंप्लेंट करवाएंगे हमारी मान हानि करने के लिए।
तो अभी ये और भी करेंगे। So at another campaign stop, Arvind hits out at the CDs by Media Sarkar that had shown his candidates allegedly taking money. This flare of provocation that has surrounded his politics has continued in the campaign trail. वो नानी वानी वाला जो इमेज है ना, ग्रैंड नैनी है, जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो। Many, like the Delhi Chief Minister Sheila Dikshit, have often struggled to respond to his highly personal attacks. शीला दीक्षित के खिलाफ ही क्यों ये लड़ाई? आपका जो कैंडिडेचर है वो शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों होना चाहिए? दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई का सिंबल बन गई है शीला दीक्षित, उसे हराना बहुत जरूरी है। और बीजेपी वालों की सेटिंग हुई पड़ी थी, बीजेपी वाले जानबूझ के कमजोर आदमी खड़ा करते थे उसके खिलाफ। किस पे मोहर लगेगी इस बार? झाड़ू पे। That he took on the mightiest in the political arena is not lost on anyone. मैं अरविंद केजरीवाल जी के तो साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं उस परिवर्तन के साथ हूँ जिनका सपना अरविंद लेकर के आया, और उस सपने के साथ मैं हूँ। पहली चीज़ है नियत। अगर आदमी की नियत अच्छी है, वो कुछ करना चाहता है, उसको मौका देना चाहिए। For many of his supporters, Arvind's humble beginnings are a big attraction. His father, Gobind Ram Kejriwal, is a retired electrical engineer. Arvind's schooling started at Sonipat. He later left his job at Tata Steel to appear for the civil services, where he scored enough to join the Indian Revenue Service. And then he gave up all of that for the RTI movement. बहुत इंटेलिजेंट थे और मेन तो इनमें ये था कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो करना है तो वो करना ही है, उसको पूरा करना ही है। विल पावर ऐसे स्ट्रॉन्ग थी बचपन से ही। There are many who aren't aware of this history but know that they will vote for the Jhadu this time. Firoz, a tailor at a mattress shop near Narela, had continued to work as the noisy cavalcade passed him. I asked him what he knew about Arvind Kejriwal. वहाँ दिला दिए, बहुत हो गए। आप किसको वोट डाले हैं अभी तक? पहले तो हम डाले थे इसका, कांग्रेस का। अब डालेंगे झाड़ू वाले। झाड़ू वाले को क्यों डालेंगे? झाड़ू वालों को झाड़ू वाले देखे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। ये टोपी क्यों पहनी है आपने? केजरीवाल के लिए। केजरीवाल के लिए क्यों? तू अच्छे आदमी है। It's a modesty that reflects everywhere, even at the AAP's office in Kaushambi. Those who have known him, like office boy Mehtab, who was a barber before he joined Arvind in his RTI days, says nothing has changed. हम इतने साल से काम कर रहे हैं उनके साथ में, हर चीज़ को जो करते हैं अच्छे से करते हैं, इतना विश्वास है हमें। It's a rare break, but some days in the midst of his busy campaign, Arvind will take out time to address other constituencies. Today, it's going to be the Indian Women Press Corps. कभी राजनीति में आएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। Back in his car, and once again, a busy Delhi trying to reach their respective destinations rarely looks up, but sometimes they do. And Arvind Kejriwal responds, but certainly not with the air surrounding a Neta. Once at the IWPC, he chooses to make a statement. The car is left outside and Arvind walks in like most of us have. मैं खास नहीं बनना चाहता, उतना ही आम रहना, हम सारे उतने ही आम रहना चाहते हैं। और इस देश की राजनीति को आम लोगों की राजनीति बनाना चाहते हैं, वीआईपी राजनीति खत्म करना चाहते हैं हम इस देश से। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। The countdown has begun to voting day. At another late-night meeting, the Aam Aadmi Party is still working hard to articulate its still ambiguous agenda on many issues. There are frequent attacks, sometimes from the Congress on funding, BJP हो चाहे केजरीवाल की हो, sometimes from the BJP, आम आदमी पार्टी फ्लॉप पार्टी बनी है, calling them a rent-a-cause party. Add to that complaints against candidates, CDs and much more. It's a new political fight every day. But with its radically fresh approach and an Aam Aadmi vocabulary, Arvind Kejriwal has ensured that Delhi election 2013 is the election to watch out for.